अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी समस्त देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीशकामये। मम जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिरहेतुकी त्वयि। तृणादपि सुनीचेन तरुरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। हरे कृष्णा। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 10, अध्याय 3 श्लोक संख्या 10। सभी श्लोक रिपीट करिए। जय प्रभु जी। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यत्वम् एष योऽस्त्व इष्टकामधुक्। एष योऽस्त इष्टकामधुक्। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा सहयज्ञा प्रजा सृष्टा पुरोवाच प्रजापति पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वोऽस्त्व इष्टकामधुक्। एष वोऽस्त्व इष्टकामधुक्। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा सहयज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्वम् अनेन प्रसविष्यत्वम् एष वोऽस्त्व इष्टकामधुक्। एष वोऽस्त्व इष्टकामधुक्। हरे कृष्णा। प्लीज इंग्लिश में पढ़िए। In the beginning of creation, the Lord of all creatures sent 4 generations of men and demigods along with
sacrifices for Vishnu and blessed them by saying, "Be thou happy by this yajna sacrifice, because its performance will bestow upon you everything desirable for living happily and achieving liberation." Purport: the material creation by the Lord of creatures, Vishnu, is a chance offered to the conditioned soul to come back home, back to Godhead. All living entities within the material creation are conditioned by material nature because of their forgetfulness of their relationship to Vishnu or Krishna, the Supreme Personality of Godhead. The Vedic principles are to help us understand this eternal relation. As it is stated in the Bhagavad Gita, Vedas the Lord says that the purpose of Vedas is to understand Him. In the Vedic realm, it is said, therefore, the Lord of the living entities is the Supreme Personality of Godhead Vishnu. In the Srimad Bhagavatam also, Srila Sukadeva Goswami described the Lord as Pati in so many ways. The Prajapati is Lord Vishnu, and he is the Lord of all living creatures, all worlds, and all beauties, and the protector of everyone. The Lord created this material world is to enable the conditioned soul to learn how to perform yajna, sacrifices, for the satisfaction of Vishnu, so that while in the material world, they can live very comfortably without anxiety, and after finishing the present material body, they can enter into the kingdom of God. That is the whole program for the conditioned soul. By performance of yajna, the conditioned soul gradually become Krishna conscious and become godly in all respects. In the age of Kali, the Sankirtana Yajna, the chanting of the names of God, is recommended by the Vedic scriptures, and this transcendental system was introduced by Lord Chaitanya for the deliverance of all men in this age. Sankirtana Yajna and Krishna consciousness go well together. Lord Krishna, in his devotional form, as Lord Chaitanya, is mentioned in the Srimad Bhagavatam as follow, with special reference to the Sankirtana Yajna. In this age of Kali, en- endowed, people who are endowed with sufficient intelligence will worship the Lord, who is accompanied by his associates by performance of Sankirtana Yajna. Other yajnas prescribed in the Vedic literatures are not easy to perform in this age of Kali, but the Sankirtana Yajna is easy and sublime for all purposes and recommended in Bhagavad Gita also. 9.14. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Jai Srila Prabhupada. Thank you, Hare Krishna Prabhuji. Thank you, Prabhuji. जय श्रील प्रभुपाद, थैंक यू। प्लीज़ हिंदी में पढ़िए। सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संततियों को रचा और उनसे कहा, तुम इस यज्ञ से सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुख पूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त हो सकेंगी। तात्पर्य: प्राणियों के स्वामी विष्णु द्वारा भौतिक सृष्टि की रचना बद्ध जीवों के लिए भगवत धाम वापस जाने का सुअवसर है। इस सृष्टि के सारे जीव प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने श्री भगवान विष्णु या कृष्ण के साथ अपने संबंध को भुला दिया है। इस शाश्वत संबंध को समझने में वैदिक नियम हमारी सहायता के लिए हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वैर हमेव वेद। भगवान का कथन है कि वेदों का उद्देश्य मुझे समझना है। वैदिक स्तुतियों में कहा गया है, पतिम विश्वस्यात्मेश्वरम। अतः जीवों के स्वामी प्रजापति श्री भगवान विष्णु है। श्रीमद् भागवत में भी श्री सुखदेव गोस्वामी ने भगवान के अनेक रूपों में पति कहा है। श्रेयः पतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्धियाम्।
पति लोकपति धरापति पतिर्गतिश्चंद करवश्न सात्वताम प्रसिद्धताम में भगवान सताम पति। प्रजापति तो भगवान विष्णु हैं और वे समस्त प्राणियों के, समस्त लोकों के तथा सुंदरता के स्वामी पति हैं और हर एक के त्राता हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत को इसलिए रचा कि बद्ध जीव यह सीख सकें कि वे विष्णु को प्रसन्न करने के लिए किस प्रकार यज्ञ करें, जिससे वे इस जगत में चिंता रहित होकर सुख पूर्वक रह सकें तथा इस भौतिक देह का अंत होने पर भगवत धाम को जा सकें। बद्ध जीव के लिए ही यह संपूर्ण कार्यक्रम है। यज्ञ करने से बद्ध जीव क्रमश कृष्ण भावना भवित होते हैं और सभी प्रकार से देवतुल्य बनते हैं। कलयुग में वैदिक शास्त्रों ने संकीर्तन यज्ञ, भगवान के नामों का कीर्तन का विधान किया है और इस दिव्य विधि का प्रवर्तन चैतन्य महाप्रभु द्वारा इस युग के समस्त लोगों के उद्धार के लिए किया गया। संकीर्तन यज्ञ तथा कृष्ण भावनामृत में अच्छा तालमेल है। श्रीमद् भागवत में संकीर्तन यज्ञ के विशेष प्रसंग में भगवान कृष्ण का अपने भक्त रूप चैतन्य महाप्रभु रूप में नियम प्रकार से उल्लेख हुआ है। कृष्ण वर्षम त्विषाम कृष्णम संगोपांग स्त्रापार्षदम यज्ञे संकीर्तन न प्रायेयजन्ति हि सुमेधस। इस कलयुग में जो लोग पर्याप्त बुद्धिमान हैं वे भगवान की अनेक उनके पार्षदों सहित संकीर्तन यज्ञ द्वारा पूजा करेंगे। वेदों में वर्णित अन्य यज्ञों को इस कलिकाल में कर पाना सहज नहीं, किंतु संकीर्तन यज्ञ सुगम है और सभी दृष्टि से अलौकिक है, जैसा कि भगवत गीता में भी संस्तुति की गई है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। तो इस श्लोक में सृष्टि की शुरुआत के बारे में बताया है, बहुत महत्वपूर्ण ही है। आज के समय में बहुत सारे लोग बहुत सारी थियरी बनाते हैं कि सृष्टि कैसे शुरू हुई, यूनिवर्स कैसे स्टार्ट हुआ, और कई सारे थियरीज़ हैं जिसका कोई प्रूफ नहीं है और जो सुनने में भी बड़े बचकाने लगते हैं, इमेजिनेशन की तरह लगते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, फिर अचानक से एक ब्लास्ट हुआ और फिर सब कुछ बन गया अपने आप। तो ये सुनने में बड़ा बचकाना लगता है और ये विज्ञान के भी खिलाफ है। विज्ञान में कहा गया है एनर्जी इज़ नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। जो ऊर्जा होती है उसको ना बना सकते हैं ना उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ऊर्जा हमेशा रहती है, पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। तो एनर्जी को सिर्फ आप एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हो। एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ये विज्ञान खुद ही कहता है। और फिर विज्ञान कहता है कि शुरुआत में कुछ भी नहीं था, अचानक से ब्लास्ट हुआ। तो ये अपने आप में ही एक गलत थियरी है जो खुद के ही विज्ञान के खिलाफ है। एक तरफ विज्ञान कहता है कि ऊर्जा को ना बना सकते हैं ना उसका नाश कर सकते हैं, और दूसरी तरफ कहते हैं कि पहले कुछ भी नहीं था, अचानक से सब कुछ बन गया। तो ये एक तरह से पागलपन है, इनको खुद ही पता नहीं है क्या बोल रहे हैं। और यहाँ पे भगवान ने स्पष्ट किया है कि सृष्टि कैसे शुरू हुई है। सृष्टि शुरू करने के लिए बुद्धि चाहिए, बुद्धिमान कोई व्यक्ति चाहिए जो ऊर्जा को कन्वर्ट कर सकता है। जैसे हमारे अंदर बुद्धि होती है तो हम लोग पेट्रोल बनाते हैं और ईंधन बनाते हैं जिसको हम अग्नि में बदल सकते हैं, तो फिर अग्नि में बदल के उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाड़ी के अंदर हम ईंधन डालते हैं, हम लोग खाना पकाते हैं उसमें भी ईंधन होता है, उसको अग्नि में हम बनाते हैं और फिर अग्नि से हम खाना गर्म करते हैं या गाड़ी चलाते हैं। और हमें ये भी पता है कि हमारे शरीर में एक अग्नि होती है, तो हम खाना खाते हैं तो उस अग्नि से खाना का पाचन होता है, फिर शरीर को एनर्जी मिलती है।
खाना भी एनर्जी है, वो पेट में जाके एनर्जी में ही कन्वर्ट होता है और उसी से हमारा शरीर चलता है। तो एक्चुअली सब कुछ एनर्जी है और वो केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु में बदलता है। तो ये विज्ञान का सिद्धांत है और ये गीता में भी लिखा गया है कि आत्मा मरती नहीं है, आत्मा केवल शरीर बदलती है और शरीर भी एक ऊर्जा का ही रूप है। तो आत्मा उसे इस्तेमाल करती है और जब वो ख़राब हो जाता है तो नया शरीर ले लेती है। तो एनर्जी कभी ख़त्म नहीं होती है, एनर्जी बस एक रूप से दूसरे रूप में चलती रहती है। आप इस जीवन में आपका एक रूप है, फिर अगले जीवन में आपका अगला रूप होगा, फिर इस तरह से आपका शरीर बदलेगा, फिर आपको नई नई एनर्जी मिलेगी और आप अलग अलग तरीके से अपना कार्य कर सकते हैं, या तो मनुष्य के रूप में, या जानवर के रूप में, या पेड़ के रूप में, या पंछी के रूप में। ये सब कुछ एनर्जी है, आपको एनर्जी मिलती रहती है, आपको शरीर मिलता रहता है। और अगर हम भगवान की सेवा करने लगते हैं, सारी एनर्जी भगवान को वापस अर्पित कर देते हैं, तो फिर शरीर नहीं बदलना पड़ता, तो फिर हमको परमानेंट शरीर मिल जाता है जिसमें हम भगवान की सेवा कर सकते हैं। क्योंकि भगवान से ही सब कुछ शुरू हुआ है, भगवान सारी एनर्जी का सोर्स है और अगर सारी एनर्जी वापस भगवान को अर्पित कर दी तो हमको शरीर नहीं बदलना पड़ेगा, हमको उनसे एनर्जी मिलती रहेगी और हम उनकी सेवा करते रहेंगे। तो इसको कहते हैं परपेचुअल मशीन। जैसे अगर किसी ने मैकेनिक्स पढ़ा है या मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा है, इसको कहते हैं परपेचुअल रनिंग मशीन। तो परपेचुअल रनिंग मशीन की वो मशीन कभी रुकेगा ही नहीं, वो चलता ही रहेगा क्योंकि उसकी एफिशिएंसी है 100%। तो किसी भी काम को करने की जो एफिशिएंसी है, उसको जितनी एनर्जी मिलती है वो पूरे का पूरा उसको वर्क में कन्वर्ट कर देता है। तो ऐसा कोई मशीन तो साइंटिस्ट भी नहीं बना सकते, ऐसा कोई मशीन साइंटिस्ट नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी 100% हो और जो चलता ही रहे हमेशा, जो कभी रुके ही नहीं। पर भगवान ने वैसी मशीन पहले ही बना दी है, उसको आत्मा कहते हैं। तो आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, आत्मा पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेगी। और आत्मा अगर भगवान का नाम लेती रहे तो वो हमेशा ज़िंदा रहेगी, चलती रहेगी, क्योंकि उसकी एफिशिएंसी 100% हो जाएगी। तो आत्मा को कोई मार नहीं सकता और अगर वो भगवान की सेवा करे तो वो एक जगह पे स्थिर हो जाती है, एक जगह पे फिक्स हो जाती है। तो इसको कहते हैं परपेचुअल रनिंग मशीन, जो भगवान ने पहले ही बना दी है और हम वही मशीन है। हम लोग वो आत्मा है जो कभी मरती नहीं है और हम भगवान का अंश है और हमें भगवान की सेवा करनी है। अगर हम भगवान की सेवा करते रहेंगे, उनका नाम जपते रहेंगे, तो हम कभी मरेंगे नहीं, कभी बूढ़े नहीं होंगे, कभी बीमारी नहीं होगी। जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये हमको कभी नहीं होगा और हम चलते रहेंगे। तो दुनिया में ऐसा कोई साइंटिस्ट नहीं है जो ऐसी मशीन बना सके जो हमेशा चलती रहेगी, जो कभी ख़राब ही नहीं होगी। पर भगवान ने ऐसी मशीन बना दी है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये मशीन वो काम नहीं कर रही है जिसके लिए उसको बनाया गया है। हमें बनाया गया है भगवान की सेवा के लिए, भगवान का नाम लेने के लिए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। पर हम लोग उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हम ख़राब हो जाते हैं, शरीर ख़राब हो जाता है, शरीर छोड़ना पड़ता है। तो अगर किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ बनाई है किसी उद्देश्य के लिए और अगर वो वस्तु उस उद्देश्य को पूरा नहीं करती तो वो धीरे धीरे वो वस्तु ख़राब हो जाती। तो जैसे गाड़ी बनाई है पर गाड़ी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, गाड़ी का उद्देश्य है हमको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे हमको घर से मार्केट जाना है या घर से दूसरे शहर में जाना है तो उसके लिए गाड़ी होती है, तो वो उसका उद्देश्य है, गाड़ी बनाने का वो उद्देश्य है। पर अगर हमने वो उद्देश्य के लिए गाड़ी को इस्तेमाल नहीं किया, अगर गाड़ी को आपने रहने के लिए इस्तेमाल किया तो फिर उसके पुर्जे धीरे धीरे सड़ जाएंगे, उसमें जंग लग जाएगा और गाड़ी ख़राब हो जाएगी और फिर वो चल ही नहीं पाएगी, उसमें ना रह पाएंगे ना उसको चला पाएंगे। तो क्योंकि उसके उद्देश्य के लिए उसको यूज़ नहीं किया, वो ऐसे ही पड़ी रही। उसका उद्देश्य था हमको इधर से उधर ले जाना, बट हमने उसको वहीं रख दिया, हमने सोचा वो रहने की जगह है, तो फिर हमने उसका गलत यूज़ कर दिया, तो वो उसमें जंग लग गया, फिर वो ख़राब हो गई, फिर उसको फेंकना पड़ा। पर अगर उसी जगह पे गाड़ी को यूज़ करते रहेंगे, मेंटेन करते रहेंगे, चलाते रहेंगे, तो वो चलती रहती है लंबे समय तक। तो एक्चुअली हमको भगवान ने बनाया उनकी सेवा करने के लिए, पर हम लोग सोचते हैं कि मुझे तो देश की सेवा करनी है, मुझे तो परिवार की सेवा करनी है, मुझे तो समाज की सेवा करनी है, और भगवान की सेवा हम करते ही नहीं हैं, भगवान का नाम लेते ही नहीं हैं। तो जिसके लिए हमको बनाया गया है वो हम काम करते नहीं हैं, बाकी कुछ करते हैं उसके साथ। तो फिर धीरे धीरे बॉडी सड़ जाती है पूरी, उसमें बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो हमको इस बात को समझना है कि हमें बनाया क्यों है।
ये पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स क्यों क्रिएट किया गया है, इसका रीज़न क्या है, पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, गोल क्या है, लाइफ का गोल क्या है, यही मेन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर ना तो हमको स्कूल में मिलता है, ना कॉलेज में, ना गवर्नमेंट देती है, ना माँ बाप देते हैं, ना समाज देता है। कोई भी हमको इस क्वेश्चन का आंसर देता ही नहीं है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मेरे को इस दुनिया में क्यों भेजा गया है, मैं कौन हूँ और मुझे किसकी सेवा करनी है। तो सब लोग हमसे अपनी अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। घर वाले अपनी सेवा कराना चाहते हैं, समाज वाले अपनी सेवा कराना चाहते हैं, पॉलिटिशियन उनकी सेवा कराना चाहते हैं, बाकी कोई मिलता है तो वो अपनी अपनी सेवा कराना चाहते हैं। तो सब लोग अपनी तरफ हमको खींचना चाहते हैं, और कोई भी आपको ये नहीं बताता कि आपको बनाया गया है भगवान के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए। और इसीलिए इसको माया कहते हैं। माया का मतलब है कि सब लोग झूठ बोल रहे हैं, सब लोग पागल हो चुके हैं, सब लोग झूठ बोल रहे हैं। कोई कहता है समाज की सेवा करो, कोई कह रहा है देश की सेवा करो, कोई कह रहा है कि परिवार की सेवा करो, कोई कह रहा है कि मेरी सेवा करो, कोई कह रहा है कि मैं अमीर हूँ मेरी कंपनी में आ जाओ, कोई कह रहा है कि मैं समाजवादी हूँ मेरे NGO में आ जाओ, कोई कहता है कि मैं देशभक्त हूँ मेरे गवर्नमेंट में आ जाओ, कोई कहता है कि हम मानवता के लिए कर रहे हैं तो हमारी इंटरनेशनल सोसाइटी में आ जाओ। तो इस तरह से सब लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। एक्चुअली सभी को भगवान ने बनाया है भगवान की सेवा के लिए। तो जो एनर्जी का सोर्स है, तो एनर्जी वापस उसी सोर्स में डालनी है, तो फिर हम कभी मरेंगे नहीं, कभी हमको बुढ़ापा नहीं आएगा, कभी मृत्यु नहीं आएगी। पर हम लोग एनर्जी ले रहे हैं भगवान से और उसको किसी और काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, भगवान की सेवा के अलावा उसको किसी और काम के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो इसीलिए सोर्स में से आप एनर्जी लेते जाओगे बट वापस सोर्स में नहीं डालोगे तो एक दिन एनर्जी मिलना ख़त्म हो जाता है। जो सोर्स है वो आपको एनर्जी देना बंद कर देता है, तो इसीलिए फिर बुढ़ापा आ जाता है, मृत्यु आ जाती है, फिर शरीर ख़राब हो जाता है, छोड़ना पड़ता है। तो हमको इस मेन सीक्रेट को समझना है, ये बहुत बड़ा सीक्रेट है। इस सीक्रेट को अगर आप नहीं समझ पाए, अगर आपने सोचा कि नहीं भगवान की सेवा के अलावा बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप इसी माया में चलते रहोगे। इसी तरह बार बार जन्म होगा, बार बार मृत्यु होगी, बार बार मरोगे, बार बार पैदा होंगे, बार बार बुढ़ापा आएगा, बार बार बीमारी आएगी। इस तरह से ये माया चलती रहेगी, पर आपको सच्चाई कभी पता ही नहीं चलेगी कि हो क्या रहा है। अगर आपको सच्चाई जाननी है तो फिर गीता आपके लिए है। गीता उसके लिए नहीं है जो अपना खुद का कुछ मतलब निकालना चाहता है या अपना कोई इंटरप्रिटेशन निकालना चाहता है गीता में से, उसके लिए भगवत गीता नहीं है। भगवत गीता एकदम क्लियर है, एकदम साफ है, सूरज की रोशनी की तरह। और प्रभुपाद जी ने तो और भी उसको क्लियर कर दिया है, तो कोई डाउट बचा ही नहीं है कि भगवान से सब कुछ आया है, सब कुछ भगवान की सेवा में यूज़ करना है। और ये सिखाने के लिए हमको एक गुरु भेजा गया है, उनका नाम है शिला प्रभुपाद। तो हम अगर प्रभुपाद को फॉलो करेंगे तो माया में कभी नहीं आएंगे। कभी भी हम गलत काम नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी को गलत काम में यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा भगवान की सेवा में यूज़ करेंगे। जहाँ से हमको एनर्जी मिल रही है उसी के लिए यूज़ करेंगे, तो फिर एनर्जी मिलती रहेगी। जैसे हमने कहा पहले परपेचुअल रनिंग मशीन। तो परपेचुअल मतलब कि जो कभी रुकेगी ही नहीं, हमेशा चलती रहेगी। अब कई बार हमसे लोग आके क्वेश्चन पूछते हैं कि ये आपका सेंटर चलता कैसे है, आप तो जॉब नहीं करते, आप गवर्नमेंट में सर्विस नहीं करते, आप कोई NGO में काम नहीं करते, आप कुछ और नहीं करते, तो कैसे चलता है सेंटर। तो हम बस इतना कहते हैं कि हमको भगवान से एनर्जी मिल रही है और हम भगवान को एनर्जी वापस अर्पित कर रहे हैं। तो यहाँ पे सेंटर में जो भी आता है उन सभी को भगवान से एनर्जी मिलती है। हम सब कीर्तन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो भगवान को जैसे ही प्रणाम करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो भगवान हम सबको एनर्जी देते हैं। जैसे मान लो कि सेंटर में 10 लोग आते हैं, 10 लोग कीर्तन करते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, तो भगवान 10 के 10 लोगों को एनर्जी देते हैं। अब अगर वो लोग एनर्जी लेके वापस भगवान की सेवा करें, मतलब भगवान को कुछ अर्पण करें, भोजन अर्पण करें या कुछ अर्पण करें, तो फिर वो एनर्जी वैसी की वैसी बनी रहती है और वो फिर चलता रहता है। मतलब भगवान एनर्जी दे रहे हैं और हम भगवान की सेवा कर रहे हैं। तो इस तरह से ये परपेचुअल रनिंग मशीन है। तो ये हमारा सेंटर भी एक परपेचुअल रनिंग मशीन है कि भगवान के पास लोग आते हैं, भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, भगवान से एनर्जी मिलती है और वो भगवान की सेवा करते हैं।
तो जो भी आता है या तो वो फल लेके आता है या कुछ डोनेशन देके जाता है, तो भगवान से उसको कुछ मिलता है और वो भगवान को कुछ देके जाता है। तो मतलब कि ये एक परपेचुअल रनिंग मशीन है। ये आप इंजीनियरिंग के टर्म्स में आप सोच सकते हो कि भगवान के पास कोई आया, उसने भगवान को कुछ अर्पित किया और भगवान ने उसको एनर्जी दी। तो इस तरह से ये ट्रांजैक्शन चलता रहेगा हमेशा के लिए, इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। अब कोई आके पूछता है कि प्रभु जी आप कहते हो 10,000 साल तक हरे कृष्णा चलेगा, कैसे चलेगा बिना किसी के सपोर्ट के? तो हमने कहा कि सपोर्ट भगवान का चाहिए, प्रभुपाद जी का सपोर्ट चाहिए, उनका सपोर्ट हमको लेना है और हमें उनको सब कुछ अर्पण करना है। अपना एनर्जी, अपना टाइम, अपनी सेवा वो भगवान को अर्पित करना है और भगवान से हमको एनर्जी मिल रही है। तो जैसे पिछले 10-11 साल से सेंटर चल रहा है तो 10,000 साल तक चलता रहेगा, उसमें क्या है। 10 साल चल सकता है तो 10 के आगे बस 3 ज़ीरो और लगाने हैं। 10 के आगे 1 ज़ीरो लगाया तो 100 हो गया, एक और ज़ीरो लगाया तो 1000 हो गया और एक और ज़ीरो लगाया तो 10,000 हो गया। तो जैसे 10 साल से चल रहा है बिना किसी के मतलब कहीं जॉब किए या बिना किसी का और किसी की सेवा किए, भगवान की सेवा करके 10 साल तक चल रहा है, तो बस उसमें 3 ज़ीरो और लगाने हैं। 10 साल, 100 साल, 1000 साल और 10,000 साल। और 10,000 साल क्या, वो तो आगे चलता ही रहेगा, क्योंकि फिर ये तो वैकुंठ में ही चला जाएगा। ये पूरा सेंटर और यहाँ के विग्रह और यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं वो सारे वैकुंठ में ही एंटर हो जाएंगे। तो फिर तो वो हमेशा के लिए इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। तो ये एक साइंटिफिक चीज़ है, मतलब ये पूरी तरह विज्ञान है। इस विज्ञान को समझना पड़ेगा कि भगवान हर एटम में रहते हैं, हर जगह पे रहते हैं। जैसे ही आप उनको प्रणाम करते हो और उनका नाम लेते हो तो आपको एनर्जी मिलती है। तो ये इनफाइनाइट टाइम तक चल सकता है। 10,000 तो कुछ भी नहीं है। अब ब्रह्मा जी के लिए 10,000 साल मतलब 1 सेकंड की तरह होता है, और कृष्णा भगवान के लिए ब्रह्मा जी का पूरा लाइफ 1 सेकंड की तरह होता है। तो भगवान के लिए तो सिर्फ एक श्लोक बोलने जितना या एक श्वास लेने जितना है। पूरे ब्रह्मा जी की जो पूरी लाइफ है वो भगवान के लिए एक श्वास के समान, 1 सेकंड के समान। और ब्रह्मा जी के मतलब हमारी जो पूरी लाइफ है, और हमारे मतलब हमारी लाइफ तो मान लो 100 साल की लाइफ है, तो हम अगर 100 बार जिएंगे और मरेंगे तो वो ब्रह्मा जी के लिए 1 सेकंड है। और ब्रह्मा जी 100 बार जिएंगे मरेंगे, वो भगवान के लिए 1 सेकंड है। तो इसमें ऐसा कोई मुश्किल नहीं है इस बात को समझना कि अगर भगवान को आप नित्य रूप से याद करते रहते हो, नाम लेते रहते हो, भगवान को सब कुछ अर्पित करते रहते हो, तो ये सारा प्रोसेस इनफाइनाइट टाइम तक चल सकता है। इसको रोकने का कोई चांस ही नहीं है। ये हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। बस हमें इनिशिएट होना है। प्रभुपाद जी हमको इनिशिएट करने आए हैं इस प्रोसेस में। तो हमको प्रभुपाद जी की बातें सुननी है, पढ़नी है, लेक्चर सुनना है, उनका बुक पढ़ना है, उसको समझना है और चैंटिंग करना है और भगवान को रोज़ प्रणाम करना है। इस प्रोसेस को फॉलो करना है। तो बहुत ईजी है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर कोई सेंटर 10 साल तक चल सकता है तो वो 10,000 साल तक भी चल सकता है और 10 लाख साल तक भी चल सकता है, क्योंकि भगवान तो हमेशा है। तो भगवान नित्य है, पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। हमें सिर्फ उनको प्रणाम करना है और उनका नाम लेना है। तो हरे कृष्णा बोलते जाना है और प्रसाद लेते जाना है। हरे कृष्णा बोलते हैं, प्रणाम करते हैं, तो भगवान से प्रसाद मिलता है। वो प्रसाद को खाओ और फिर से प्रणाम करो, फिर से नाम लो उनका। पर प्रॉब्लम ये होती है कि हम भगवान को प्रणाम करते हैं, हरे कृष्णा बोलते हैं, प्रसाद खाते हैं और फिर बाहर जाके माया में एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। हम लोग मूवीज़ देखते हैं या कोई गलत वीडियोस देख लेते हैं, फिर हम शारीरिक भोग करते हैं। तो वो सारी एनर्जी जो भगवान से मिल रही है वो हम सारी वेस्ट कर देते हैं। फिर भगवान सोचते हैं कि ये तो सारी एनर्जी वेस्ट कर रहा है, ये मेरे पास आया, इसने प्रणाम किया, इसको मैंने प्रसाद दिया, इसको फिर से एनर्जी से भर दिया मैंने, और फिर ये बाहर जाके गलत काम कर रहा है, सारी एनर्जी को वेस्ट कर रहा है। तो फिर एक दिन भगवान हमको एनर्जी देना ही बंद कर देते हैं। इसलिए लोगों को बुढ़ापा आता है और मृत्यु आती है, क्योंकि वो नाम लेते हैं भगवान का, मंदिर में जाते हैं, घंटी बजाते हैं, प्रणाम करते हैं और प्रसाद भी खाते हैं, उनकी बॉडी में एनर्जी आ जाती है। फिर वो घर पे जाके क्या करते हैं, वो अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं आस पड़ोस की बातें करने में, गॉसिपिंग करने में, मूवीज़ देखने में, गलत वीडियोस देखने में और शारीरिक भोग करने में। तो सारा वो एनर्जी को निकाल देते हैं बॉडी से और वो वेस्ट हो जाती है। उसी को माया कहते हैं।
तो भगवान भी सोचते हैं कि अच्छा तू मेरे से एनर्जी ले रहा है और बाहर जाके सारी वेस्ट कर रहा है, तो अब मैं तेरे को एनर्जी नहीं दूंगा, क्या करेगा फिर तो फिर धीरे धीरे बॉडी में बुढ़ापा आने लगता है, फिर बीमारी होने लगती है, सारी बॉडी के पार्ट्स ख़राब होने लगते हैं, फिर एक एक करके पूरा बॉडी ब्रेक डाउन हो जाता है, और उसी को कहते हैं मृत्यु। ये उसने भक्ति कंटिन्यू नहीं की, वो आया मंदिर में, उसने प्रणाम किया, प्रसाद खाया, एनर्जी ली, बट फिर वो वापस से मंदिर में नहीं आया सारी एनर्जी वापस भगवान को देने के लिए। तो हमारा कर्तव्य क्या है, भगवान से लो और भगवान को दो, तो ये फिर चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम तक। बट हम लोग क्या करते हैं, भगवान से लेते हैं, फिर कहीं पे जाके उसको वेस्ट कर देते हैं, फिर भगवान हमको देना ही बंद कर देते हैं। ये सिंपल एग्जांपल है, पिताजी बेटे को पॉकेट मनी दे रहे हैं, अगर पॉकेट मनी को वो वेस्ट कर रहा है, शराब पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, अय्याशी कर रहा है, तो आपको क्या लगता है पापा क्या करेंगे? नहीं देंगे और पिटाई करेंगे, अच्छे से धुलाई। हाँ, धुलाई तो वो करे, देना बंद कर देंगे। हाँ देना ही बंद कर देंगे, तो वो फिर गरीब हो जाएगा। पहले तो बड़ा अपने फ्रेंड्स में जाके बोलता था, अरे मेरे को तो इतनी पॉकेट मनी मिलती है, चलो शराब पियेंगे, सिगरेट पियेंगे, अय्याशी करेंगे, गंदी वीडियोस देखेंगे, फिर हम कहीं पे जाके अपना एनर्जी वेस्ट करेंगे। तो पापा को तो पता है क्या कर रहा है बेटा। आजकल के जो पापा मम्मी है वो भी ख़राब हो चुके हैं, कहते नहीं बेटा वो सब काम कर, हम तेरे को और पैसा देंगे, बट तू कहीं गलती से हरे कृष्णा वालों के पास मत जाना, वो तेरे को दिमाग ख़राब कर देंगे। तो इसीलिए आजकल के पेरेंट्स भी पागल हो चुके हैं कि वो अपने बच्चों को लाखों रुपए देते हैं कि भाई तू अय्याशी कर, कुछ भी कर, पर गलती से मंदिर के दरवाजे के अंदर मत जाना, हरे कृष्णा वाले के पास गलती से भी मत जाना, वो तेरा दिमाग ख़राब कर देंगे। बट एक्चुअली फैक्ट क्या है कि यहाँ पे आके हम आपका दिमाग सही कर देते हैं कि भगवान से एनर्जी मिल रही है और भगवान को एनर्जी वापस देनी है, और हमको फिर इसी तरह बुढ़ापा और मृत्यु से हम बच पाएंगे। बट पेरेंट्स भी सारे पागल हो चुके हैं, ग्रैंड पेरेंट्स भी पागल हो चुके हैं बुढ़ापे में। अब जैसे मेरे घर का एग्जांपल ले लो आप, लास्ट मोमेंट तक नानी यही बोल रही है कि तू वापस आ जा, तू परिवार में आ जा, तू अपना शारीरिक जो तू सुख ले रहा है परिवार में वो क्यों नहीं ले रहा है, तू उसको एंजॉय कर, तू फैमिली लाइफ को। तो मैंने सिर पकड़ लिया, मैंने बोला नानी कितनी माया में है, उनका शरीर ख़त्म हो रहा है, पूरी बॉडी सड़ चुकी है, सारे पुर्जे ख़राब हो चुके हैं, बाल सफ़ेद हो चुके हैं, आंखें उठ नहीं रही है, उनको सुनाई नहीं दे रहा है, बट वो फिर भी मुझे बोल रही है तू आ वापस और तू शरीर को एंजॉय कर। तो फिर मैंने समझ लिया कि सचमुच ये माया इतनी स्ट्रांग है, इतनी स्ट्रांग है कि व्यक्ति मर रहा है, उसकी बॉडी ख़राब हो चुकी है, सारे पुर्जे ख़राब हो चुके हैं, वो बॉडी छोड़ने वाला है, तभी भी वो यही शिक्षा दे रहा है कि तू शरीर का एंजॉयमेंट कर। तो मैंने तो नानी को लास्ट जो मेरी बात हुई नानी की बॉडी छोड़ने से पहले, मैंने उनसे हाथ जोड़ के यही कहा कि मैं आपकी तरह नहीं बन सकता, आपने तो पूरी लाइफ वेस्ट कर दी, मैं अपनी लाइफ वेस्ट नहीं कर सकता, मैं तो भगवान की सेवा ही करूँगा। और फिर मुझसे नानी कहती है कि तुम अकेले कैसे मंदिर बनाओगे। तो मैंने बोला मुझे मंदिर बनाना ही नहीं है, भगवान हर जगह पे है, मुझे कमरा भी मिल गया, उसी कमरे में छोटा सा हम ऑल्टर बना देंगे, वहीं पे गीता क्लास लेंगे, वहीं पे कीर्तन करेंगे, चाहे 10,000 साल तक हम वहीं पे रहे या 10 लाख साल तक हम वहीं पे रहे, और मंदिर बने ही नहीं कभी, तो भी हम वहीं पे रहेंगे और वही काम करते रहेंगे। हमको ना मंदिर चाहिए, हमको ना पैसा चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, हमको भगवान चाहिए बस। तो फिर नानी का स्टेटमेंट था तू पागल हो चुका है, तेरे को कोई समझा नहीं सकता। मैंने बोला हाँ नहीं समझा सकता, आप भी मत समझाइए, आप शांति से जाइए, बॉडी छोड़ के जाइए आप, क्योंकि मुझे पता है कि आपको भगवान कहीं ना कहीं वापस मौका देंगे। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ भगवान से कि अभी तो नानी को समझ में नहीं आ रहा है, उनकी शरीर ख़त्म हो रहा है तो भी उनको नहीं समझ में आ रहा है, तो मैं भगवान से रोज़ प्रार्थना कर रहा हूँ कि नानी को अगली बार आप कहीं भक्त के आसपास जन्म दीजिएगा, या किसी प्रभुपाद जी का कोई शिष्य होगा या कोई इस्कॉन टेम्पल होगा उसके आसपास ही आप जन्म देना। तो मैं रोज़ भगवान से प्रार्थना करता था, तो मुझको तो गारंटी है कि भगवान ने उनको दिया होगा, कोई ना कोई अच्छा मौका दिया होगा बॉडी छोड़ने के बाद। और मुझे उस बात का दुख भी नहीं कि उन्होंने बॉडी छोड़ दी, क्योंकि वो तो सत्य है। अब मुझको घर वाले कह रहे हैं कि तू ना रोया, तुझे ना दुख हो रहा है कि वो चली गई। मैंने बोला दुख की क्या बात है उसमें, वो तो आपको भी जाना है क्योंकि आप भक्ति नहीं कर रहे हैं। तो कह रहे अच्छा तू नहीं जाएगा, मैंने बोला नहीं मैं नहीं जाऊँगा। तो कह रहे तू कहाँ रहेगा, मैंने बोला मैं इस्कॉन में ही रहूँगा, और इस्कॉन 10,000 साल तक चलेगा, तो मैं कहीं इस्कॉन में ही रहूँगा 10,000 साल तक। उसके बाद प्रभुपाद ने कहा कि हम सब वैकुंठ में जाएंगे, तो हम वहाँ चले जाएंगे, बट मैं घर पे तो नहीं आऊँगा और आप लोगों के बीच में तो बिल्कुल नहीं आऊँगा मैं,
क्योंकि आप सबका दिमाग ख़राब हो चुका है, आपको पता नहीं माया क्या है, भगवान क्या है, सत्य क्या है। आप सब लोग झूठ के पीछे भाग रहे हो और मुझको पागल कह रहे हो आप, जबकि सच्चाई ये है कि आप सब पागल हो। नानी चली गई, नानी की नानी चली गई, आप भी जाने वाले हो, तो भी आपको अकल नहीं आ रही है कि ये हो क्या रहा है। आंखों के सामने सब कुछ हो रहा है कि मेरी नानी गई, पड़ोस वाले की नानी गई, उसकी नानी गई, सबकी नानी जा रही है एक एक करके। बट नानी क्या, दादी भी जा रही है, नानी भी जा रही है, सब लोग जा रहे हैं एक एक करके, पर फिर भी अकल आ ही नहीं रही है। सबका दिमाग सड़ चुका है पूरी तरह से। तो मैं क्यों अपना दिमाग सड़ाऊँ? मेरे को तो सत्य पता है, प्रभुपाद जी ने सब लिख दिया है, आंखों के सामने दिख रहा है सत्य। इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए आपको कि आंखों के सामने ही सब कुछ हो रहा है, सब लोग एक एक करके मर रहे हैं, एक एक करके सबका नंबर आ रहा है। तो मैं क्यों जाऊँ आपके पास? मैं तो प्रभुपाद के चरणों में ही रहूँगा। वहाँ तो कोई डर है ही नहीं, ना मृत्यु का डर है, ना बुढ़ापे का डर है, ना बीमारी का डर है। लाइफ चलती रहती है बस आराम से। सुबह उठो, मंगल आरती करो, 16 माला जाप करो, कीर्तन करो, प्रसाद पाओ, डिस्ट्रीब्यूशन करो, प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करो, गीता डिस्ट्रीब्यूट करो। बहुत सिंपल लाइफ है, बहुत अच्छी लाइफ है। तो इसको छोड़ने की ज़रूरत ही क्या है? तो आप माया नहीं छोड़ सकते, मैं भगवान को नहीं छोड़ सकता, सीधी सी बात है। तो आप रहो माया में, दुखी रहो आप, मैं क्या कर सकता हूँ? तो ऐसा बोल के आ गया मैं। अब उनको ऐसा लगता है कि मैं उनसे प्रेम नहीं करता। अब मेरे से ज़्यादा प्रेम उनसे कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं उनको सत्य बता रहा हूँ। जो आपका सच्चा प्रेमी होता है वही सच्चाई बताता है आपको। जो आपका सच्चा शुभ चिंतक होता है वो आपको फेस पे बोल देता है कि ये सच्चाई है, आप गलत काम कर रहे हो, और आपको दुख होगा, आपको कष्ट होगा। तो आपको यहीं पे आना पड़ेगा, भगवान के पास ही आना पड़ेगा। आज नहीं तो कल आपको आना ही पड़ेगा। तो अभी आ जाओ, तो इसी में आपकी भलाई है। तो नहीं मान रहे हैं वो, तो मैं तो उनके भले के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं उनसे प्रेम करता हूँ, बट उनको नहीं मानना है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ? तो बेस्ट यही है जो लास्ट होता है, एक होता है साम दाम दंड भेद। तो भेद का मतलब है कि फिर हमें उनसे भेद करना है कि नहीं, अब मैं आपको नहीं जानता, को जो करना है करो, मैं तो भगवान को जानता हूँ। भगवान ही मेरी फैमिली है और प्रभुपाद ही मेरे फादर हैं, और वही सब कुछ है मेरे लिए। इसको बोलते हैं भेद, कि भेद कर दो उनसे कि भाई मैं तो आपको नहीं जानता, आप माया में हो, जो माया में है मैं उसको नहीं जानता। मैं भक्तों को जानता हूँ, और प्रभुपाद को जानता हूँ, और राधा कृष्णा को जानता हूँ, चैतन्य महाप्रभु को जानता हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनसे प्रेम नहीं करते, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए हम उनको सच्चाई बता रहे हैं और हम उनको बचाने का ट्राई कर रहे हैं। अगर वो नहीं बचना चाहते तो वो उनकी मर्ज़ी है, पर मेरा कर्तव्य तो मैं कर रहा हूँ। मैं अभी भी भक्ति कर रहा हूँ, उनको अभी भी इनवाइट कर रहा हूँ, आप आओ, मंदिर में रहो, इस्कॉन में सेवा करो, आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे, कोई कमी नहीं है किसी बात की। बट उनको नहीं आना है तो ये उनका दुर्भाग्य है, उनके प्रॉब्लम है, उनकी मिस्टेक है ये। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उनसे प्रेम नहीं करते, हम उनसे बहुत प्रेम करते हैं। तो हमें बस अपना मार्ग पे चलते रहना है, डरना नहीं है किसी से। ये सच्चाई सामने लिखी हुई है कि सृष्टि भगवान ने शुरू की है, और भगवान के लिए जीना है, भगवान के लिए सब कुछ करना है। ये एकदम साफ लिखा है भगवद गीता में, इसमें कोई इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत नहीं है, कोई मतलब निकालने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ एकदम साफ है। तो यहाँ किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, आपने जो बोला कि एनर्जी कन्वर्सेशन के मतलब प्रोसेस में, मतलब भगवान विष्णु जी वो जो एनर्जी कन्वर्सेशन किए थे, वो आपने एनर्जी को कन्वर्ट किए थे ना, मतलब नेचर बनाने के लिए, या फिर हाँ जी। मतलब हाँ। अच्छा, मैं अभी इसको और प्रभु जी यहाँ टाइम पूरा हो रहा है, मैं फिर से कनेक्ट करता हूँ और फिर से ज्वाइन हो जाएगी। जी 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 प्रभु जी, हरे कृष्ण।